Hello everyone, this is your chapter number 5, Government Budget and the Economy of Macroeconomics book for class 12th. This is the part 1 of this chapter by Ms. Divya Saraswat. In this chapter, we are going to learn about how government influences economic life with the help of budget. So let us move ahead. These are the topics to be covered through this video. First is meaning of government budget. Second is objectives of government budget. Third is components of government budget. In components of government budget, we are going to learn about two components, capital budget and revenue budget. Government budget. There is a constitutional requirement in India according to Article 112 to present before the Parliament a statement of estimated receipts and expenditure. Here the word estimated means pre-planned. मतलब ये चीज़ पहले से एस्टिमेट की जा रही है कि इतनी रिसीप्ट्स होंगी एंड इतनी एक्सपेंडिचर्स होंगे विद इन अ ईयर, फिस्कल ईयर of the government in respect of every financial year which runs from 1st April to 31st March. This annual financial statement constitutes the main budget document of the government. So financial year is from 1st April to 31st March. Secondly, the budget is estimated receipts and expenditure. Basically, it is pre-planned that it is estimating कि इतना हमारे receipts हमें receive होंगे and these are going to be expenditures. Now, what are the objectives of the budget? So, I hope you all are clear with the government budget definition, that it is a statement showing estimated receipts and expenditure under various heads during a fiscal year. Now, let us move to the objectives. Objectives are, first one is redistribution of income and wealth. Basically, इसका जो main motive है, that is how to reduce inequality. हम लोगों ने अब तक जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने ये समझा है दैट देयर आर रिच सेक्शन एंड पुअर सेक्शन. रिच सेक्शन डे बाय डे और रिच हो रहा है एंड पुअर सेक्शन इज बिकमिंग पुअर डे बाय डे. सो गवर्नमेंट का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है थ्रू द बजट इज योर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. द गवर्नमेंट यूजेस फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज. टैक्सेशन एंड सब्सिडीज. अब टैक्स किसके ऊपर लगाएगी? रिच सेक्शन के ऊपर. जितना ज़्यादा आप अर्न करोगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. एंड सब्सिडीज किसके लिए होंगी? वेलफेयर स्कीम्स किसके लिए होंगी? फॉर पुअर सेक्शंस विद अ व्यू टू इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी. इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी. It will reduce income of rich and raise standard of living of the poor, thus reducing inequality in the distribution of income. Basically, taxation rich section के ऊपर होगा and subsidies and welfare programs and welfare scheme is for poor section so that it can reduce the income of rich and raise standard of living of the poor. Second one is reallocation of resources. Now, how to reallocate the resource? Basically, the main motive of reallocation of resources is balance between goals of social welfare and profit maximization. गवर्नमेंट को ये दोनों चीज़ें ही लेके चलनी होती है. अगर सिर्फ सोशल वेलफेयर को गवर्नमेंट मोटिव बनाएंगे तो उनके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, उनके पास पैसा नहीं आएगा जिसकी वजह से वो देश चला पाए. Right, so government needs money also and social welfare also. So social welfare and profit maximization. Through this policy, government aim to reallocate the resources in accordance with the economic and social priority of the country. For example, अगर social welfare की बात करें and we are having a land, तो उस land पे या तो school हो जाएगा या hospital हो जाएगा या library हो जाएगी for social welfare. But if government want to use that land for profit maximization, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वहाँ पे कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड कर देगी या होटल बिल्ड कर देगी सो दैट गवर्नमेंट को वहाँ से प्रॉफिट अर्न हो. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. नाउ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ना थोड़ा सा लास्ट चैप्टर से रिलेट करते हैं, वेयर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड. थोड़ा सा उससे हम लोग ज्वाइन करके इसको समझेंगे. गवर्नमेंट बजट इज यूज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब होती है? व्हेन
एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है लोगों की, सप्लाई हमारे पास उतनी नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, प्राइस रेज कर देते हैं सो दैट डिमांड बैलेंस हो पाए। तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन हो जाती है, इन्फ्लेशन की। वेयर एज एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि सप्लाई हमारी ज़्यादा है लेकिन लोगों की डिमांड उतनी नहीं है, तो उस टाइम पे हम प्राइस डाउन कर देते हैं, डिफ्लेशन की सिचुएशन लेके आते हैं सो दैट पीपल कैन सो दैट आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल हो पाए एग्रीगेट सप्लाई के। नाउ अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी इमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन एग्रीगेट सप्लाई और एक्सपेंडिचर। ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। डिफ्लेशन मतलब जब वो सिचुएशन आती है जहां पर आपकी चीजें बहुत ज्यादा प्राइस उनका डाउन होने शुरू कर देता है, तो गवर्नमेंट इस टाइम पर क्या करेगी, एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देगी और टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी। एंड इन इन्फ्लेशन की सिचुएशन में रिड्यूस होंगे एक्सपेंडिचर्स एंड इंक्रीज होंगे टैक्सेस। नाउ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। There are large number of public enterprises, industries and managed for social welfare of the public budgets prepared with the objective of making various provisions for managing such enterprises and providing them financial help. Basically हमारे पास बहुत सारे नवरत्नास, महारत्नास, मिनी रत्नास हैं। Through this गवर्नमेंट को एक बजट के अंदर वो चीज भी लेके आनी चाहिए सो दैट सोशल वेलफेयर भी मेंटेन रहे थ्रू दिस पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है। Now, last one is to reduce poverty, unemployment and regional disparity. तो गवर्नमेंट बजट को अगर हम पॉवर्टी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। रीजनल डिस्पैरिटी बेसिकली मतलब डेवलपमेंट शुड बी इक्वल इन ऑल द रीजन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरियाज में ही डेवलपमेंट हो रहा है, रूरल में नहीं हो रहा। So government budget aims to reduce regional disparities through its taxation and expenditure policy for encouraging setting up of production units in economy। जैसे कि हम लोगों ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा था, इन रूरल एरियाज में थोड़ा सा कंसेशन मिल रहा था इन टैक्सेस एंड सब्सिडीज भी प्रोवाइड की जा रही थी। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो गवर्नमेंट माइंड में रखती है while making budget। Now components of government budget। components गवर्नमेंट बजट के दो components हैं, only two components, revenue budgets and capital budget। कैपिटल बजट ना एक तरह से हम वो बोल सकते हैं जो काफी ज्यादा हैवी ट्रांजैक्शंस रखता है, जिससे हमारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज पे फर्क पड़ता है। ठीक है, या तो असेट्स इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, या लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, डिक्रीज होती है। तो कैपिटल बजट्स बेसिकली कैपिटल अकाउंट होल्ड करता है इन विच assets and liabilities increase and decrease matter करता है। whereas revenue budget is in current account। इसके अंदर जो एक साल के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होती है, छोटी मोटी जो ट्रांजेक्शन होती है, जिससे असेट और लाइबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कंट्री की असेट और लाइबिलिटी पे इसका कोई भी असर नहीं होता, वो होता है आपका रेवेन्यू बजट, जिसकी ट्रांजेक्शन आपकी सारी करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। नाउ रेवेन्यू बजट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू रिसीव्ड, revenue expenditure। capital budget is also of two types, capital receipts and capital expenditure। पहले receipts का मतलब समझ लो and expenditure। expenditure तो बहुत ज्यादा क्लियर है होपफुली आप सबको कि expenditure means you are expending something। आप अपना expense कर रहे हो, कहीं पर आप खर्च कर रहे हो, आपकी पॉकेट से जा रहा है, आपकी पॉकेट से एक अमाउंट ऑफ मनी जा रहा है। whereas receipt is आपके पास वो अमाउंट आ रहा है, आपकी पॉकेट में कोई भी अमाउंट आ रहा है, दैट इज योर रिसीप्ट। फाइन। एक्सपेंडिचर इज आउटगोइंग ऑफ मनी, रिसीप्ट इज इनकमिंग ऑफ मनी। नाउ गवर्नमेंट बजट इट एक्सप्लेन हाउ रेवेन्यू जनरेट एंड कलेक्टेड, कैसे हम जनरेट करते हैं रेवेन्यू को, कैसे कलेक्ट करते हैं। सेकेंड वन इज कैपिटल बजट। कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन इन द पब्लिक। स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल बजट। कैपिटल बजट में हम शुरू कर रहे हैं कैपिटल रिसीप्ट से। कैपिटल रिसीप्ट मैंने पहले ही आपको बोला था, विच ईदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि रिसीप्ट वो होगी कैपिटल रिसीप्ट जहां पे लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर असेट डिक्रीज होगा।
अब लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब क्या हुआ? लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब इफ यू आर बोरोइंग मनी, आप किसी से पैसा ले रहे हो, आप बोरो कर रहे हो किसी मनी को, ठीक है, तो आपका उधार बढ़ रहा है। उधार मतलब होता है लाइबिलिटी, ठीक। रिसीप्ट मतलब आपके पास पैसा आ रहा है लेकिन आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना। अब दूसरी तरीके से रिसीव और कैसे पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास? दो तरीकों से आएगा, या तो वो बोरो करे या फिर वो अपने असेट्स को सोल्ड कर दे। फाइन, अगर वो अपने असेट को सेल करेगी तो भी पैसा आएगा। सो अगर असेट को सेल कर रहे हैं तो असेट असेट क्या हो रहे हैं? रिड्यूस। सो दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग, जो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है एंड रिडक्शन इन असेट। सो ऊपर एरो करके लिखना है लाइबिलिटी इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग एरो इज योर असेट। नाउ there are non-recurring and non-routine in the nature. Now the receipt must create a liability for the government. Borrowing are capital receipt as they lead to increase in the liability of the government. However, tax receipt is not a capital receipt. It does not result in increase of liability. टैक्स अगर गवर्नमेंट के पास आ रहा है तो वो उनके पास ऐसा नहीं है कि वो उधार का है, वो उनका रेवेन्यू है, वो पैसा है जिससे वो आगे जाके काम करेंगे, ठीक है। तो टैक्स रिसीव्ड इज नॉट अ कैपिटल रिसीव्ड। द रिसीव्ड मस्ट कॉज अ डिक्रीज इन असेट, वो मैंने आपको समझा दिया है। अगर गवर्नमेंट अपनी कोई प्रॉपर्टी को सेल कर रही है, पब्लिक इंटरप्राइजेस का कुछ पार्ट सेल कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं उनके असेट को रिड्यूस कर रही है, दैट इज कैपिटल रिसीव्ड। Now, capital receipts are broadly classified into three groups. The first one is borrowing. Borrowing are fund raised by the government. कैसे borrow करते हैं गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ओपन मार्केट से borrow करते हैं, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. Borrowing are capital receipt as they create liability फॉर द गवर्नमेंट. एक तरह का लोन हो जाता है गवर्नमेंट के लिए वो. रिकवरी ऑफ लोन. रिकवरी ऑफ लोन मीन्स government grants various loan to the state government or union territory assets of the government. Now other one is PF like receipts, जो other receipts होती हैं, जो PF like receipts. डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट जैसे कि अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में बात की थी. डिसइन्वेस्टमेंट वेयर पब्लिक सेक्टर या पब्लिक एंटरप्राइजेस अपना कंपनी के, अपनी एंटरप्राइजेस का कुछ शेयर जो है वो सोल्ड कर देती है, सेल कर देती है उसके शेयर्स. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, उनका फाइनेंस इंक्रीज होता है, वेयरएज उनके असेट्स डिक्रीज होते हैं. स्मॉल सेविंग. स्मॉल सेविंग आप लोगों ने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. ये बेसिकली क्या होता है, एक काइंड ऑफ एफडी होती है. गवर्नमेंट उन लोगों का पैसा लेती है फॉर 5 ईयर्स एंड उसके बदले में उन्हें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या किसान विकास पत्र, उनकी सेविंग को प्रमोट करने के लिए, राइट. सो दिस इज व्हाट, एक तरह से गवर्नमेंट लोगों का पैसा ले रही है, वो बोरोइंग हो जाएगी उनके लिए, उसके बदले में बेशक से वो इंटरेस्ट दे रही है, बट इट समवेयर इंक्रीज इट्स लाइबिलिटी. Now, capital expenditure. Expenditure हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं. What is expenditure? Capital expenditure refers to expenditure which either creates an asset. अब एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इसका मतलब आप खर्च कर रहे हो तो असेट खरीद रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका असेट इंक्रीज हो रहा है. और कॉज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटीज. लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर. नाउ इस चीज में याद रखना, जस्ट ऑपोजिट ऑफ इट, कि आपका असेट इंक्रीज होता है एंड लाइबिलिटी इसमें डिक्रीज होती है. अब असेट इंक्रीज कैसे होगा? गवर्नमेंट या तो कोई रोड्स कंस्ट्रक्शन करे या ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन करे या फिर स्कूल बिल्डिंग, जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, द एक्सपेंडिचर मस्ट क्रिएट एन असेट फॉर द गवर्नमेंट. स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है. उससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का असेट इंक्रीज हो रहा है कहीं ना कहीं. लेकिन अगर सैलरीज की बात करें तो सैलरीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आती हैं क्योंकि उससे एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, वो रेवेन्यू का पार्ट है. सेकेंड वन इज एग्जाम्पल, लोन टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग रोड्स एंड फ्लाईओवर. या फिर आप कोई भी लोन की रीपेमेंट भी कर रहे हो तो भी आपका वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ रहा है. आपको लोन रिड्यूस करना है तो रीपेमेंट्स ऑफ लोन, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, दीज ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर. यहाँ पर और एग्जांपल्स दे रखे, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग,
एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव, रीपेमेंट्स ऑफ लोन, क्योंकि आप उसमें लोन रिड्यूस कर रहे हो। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज, उससे आपका कहीं ना कहीं असेट इंक्रीज हो रहा है। पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, याद रखना इस चीज को। इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, ये करंट अकाउंट में जाएगा आपका सीधा सीधा। परचेज ऑफ 20 क्रेन फॉर द फ्लाईओवर, ये कहीं ना कहीं इक्विपमेंट है, ठीक है। तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एट इट इंक्रीज द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नाउ come to now revenue one. Revenue receipts, revenue neither create any liability, ना liability create करेंगे ना assets को रिडक्ट करेंगे, यानी कि जो आपका कैपिटल रिसीप्ट था जस्ट उसी को लिख के क्रॉस कर दो एक बार को तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट क्या था, जिसमें आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वेयर एज असेट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ना असेट डिक्रीज होगा ना लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। So a receipt of revenue receipt is satisfy the following two conditions. पहली condition है the receipt must not create liability for the government, यानी कि taxes levied by the government are revenue receipt. taxes अगर गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं तो वो बोरो नहीं कर रहे हैं, उससे लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है, वो उनके लिए एक रेवेन्यू है, ठीक है। सो रेवेन्यू रिसीट एज दे डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। However, any amount borrowed by government, बोरो करना क्या होता है, लाइबिलिटी क्रिएट करना होता है, वो कैपिटल रिसीप्ट्स में आएगा। द रिसीप्ट मस्ट नॉट कॉज एनी डिक्रीज इन असेट्स, ठीक है। अगर गवर्नमेंट पब्लिक का ही शेयर पब्लिक को ही सेल कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पब्लिक, पब्लिक का ही शेयर पब्लिक को ही सेल कर रही है, तो वो एक तरह का, वो किसी भी तरह का असेट डिक्रीज नहीं, क्योंकि वो असेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, वो तो पब्लिक का है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स दो तरह की होती है, फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू, सेकंड इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू आपको पता है जितने भी टैक्सेस होते हैं हमारे, ड्यूटीज होती हैं, ड्यूटीज टैक्स सारा जो भी गवर्नमेंट लगाती है उन सबको प्लस कर दोगे टैक्स रेवेन्यू आ जाएगा। अब टैक्स भी हमारे दो तरीके के होते हैं। नाउ डायरेक्ट टैक्स आर बेसिकली दोज टैक्स जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। दे आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी, इनकम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल को ही अपना पे करना होता है। दे आर इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल एंड कंपनीज। उसके बाद इसकी जो लाइबिलिटी होती है पे करने की, एक्चुअल बर्डन उसी के ऊपर लाई कर रहा है टैक्स का, जिससे उसे पे करना है, ठीक है, कहीं और शिफ्ट नहीं कर रहा वो। अगर मेरी इनकम है, मेरे को अपना इनकम टैक्स खुद पे करना पड़ेगा, मैं उसको शिफ्ट नहीं कर रही हूँ कि नहीं भाई मेरी इनकम का टैक्स आप पे कर दो, वो चीज नहीं होती है। इनडायरेक्ट टैक्स वेयरएज इसका जस्ट ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है, रेफर्स टू दोज टैक्सेस व्हिच अफेक्ट द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद इसका जो बर्डन होता है, लाइबिलिटी टू पे एंड बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, तो रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो तो बिल के साथ वो आपको एक टैक्स लगा के देता है, ठीक। वो टैक्स है आपका, लेकिन पेमेंट उसकी किसके थ्रू हो रही है, दैट पर्सन जो कि ओनर है रेस्टोरेंट का। तो कहीं ना कहीं आपका जो बर्डन है टैक्स का वो किसी और पे शिफ्ट हो गया है, अब आपका टैक्स उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे ही लेगा नो डाउट, बट पेमेंट किसके थ्रू हो रही है, किसी और पर्सन के थ्रू हो रही है, ठीक है। जिसके अंदर आता है आपका वैट, जीएसटी, एंटरटेनमेंट टैक्स। एक और चीज है कि डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो आपका प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। प्रोग्रेसिव मतलब रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विथ रेट ऑफ इनकम, जितनी आपकी इनकम इंक्रीज होगी उतना ही आपका टैक्स इंक्रीज होगा। तो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, वेरेज अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वो रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव मतलब रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी 100 रुपीज अर्न कर रही हूँ और मैं अपनी सैलरी में से कहीं ना कहीं कोई चीज परचेज कर रही हूँ, सपोज मैंने चिप्स परचेज किए, मैं एक चिप्स के ऊपर 2% टैक्स दे रही हूँ, ठीक, लेकिन मैं 100 रुपए कमा रही हूँ तो मुझे वो टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर मैं 100 की जगह 10,000 रुपए कमाऊंगी तो वो उस एक चिप्स के पैकेट के ऊपर वो जो 2% टैक्स लग रहा है वो मुझे कम लगेगा। क्लियर? तो इसका मतलब रेग्रेसिव मतलब ये हुआ कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो रेट ऑफ टैक्स कहीं ना कहीं आपके लिए डिक्रीज होगा। ओके, नाउ नॉन टैक्स रेवेन्यू रेफर्स टू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सर्विसेज अदर देन दोज टैक्स रिसीप्ट। जैसे कि इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है,
जो उन्होंने लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरीज को, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को या जनरल पब्लिक को भी लोन दिया है गवर्नमेंट ने, तो उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो नॉन टैक्स हो गया। फीस, कोई भी फीस आप गवर्नमेंट के लिए कोई भी ऑफिस में पे करते हो अपना काम कराने से पहले, जो गवर्नमेंट को एक नॉमिनल फीस पे करनी होती है, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, यहाँ पे कोर्ट फीस। ना लाइसेंस फीस, जब कभी लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उसके लिए भी पेमेंट होती है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये तो सब लोग जानते हैं। अगर आप, अब तो फाइन एंड पेनल्टीज और भी ज्यादा बढ़ गया है गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, राइट। अब आया एस्चीट्स। एस्चीट्स क्या होता है? एस्चीट्स क्या होता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई ओनर नहीं है। अगर सपोज एक पर्सन डाई कर जाता है तो उसके बाद उस प्रॉपर्टी का कोई ओनर नहीं होता, तो वो गवर्नमेंट के पास आ जाती है। इज कॉल्ड एस्चीट्स, ठीक है। इट रेफर्स टू क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लीविंग बिहाइंड अ हायर और अ विल, मतलब उसकी कोई विल नहीं है, कोई उसको लेने वाला दावेदार नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एस्चीट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट, जो भी गवर्नमेंट को ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं, काइंड ऑफ जब गवर्नमेंट क्राइसिस में होती है उसे कहते हैं। फॉर फीचर्स आर फॉर्म ऑफ पेनल्टीज, जो कि कोर्ट इम्प्लाई करता है बाकी लोगों पे कि आप नॉन कंप्लायंस ऑफ अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानते। स्पेशल असेसमेंट, इट रेफर्स टू पेमेंट मेड बाय द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी हु वैल्यू हैज एप्रिशिएटेड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो घर है वो फ्लाईओवर के पास है, फाइन, पहले वहाँ फ्लाईओवर नहीं था, लेकिन अब फ्लाईओवर है यहाँ, या फिर वहाँ मॉल एंड बिल्डिंग्स बन गए हैं, जिससे आपके घर की वैल्यू बढ़ गई है, आपके घर के आसपास डेवलपमेंट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो आपसे एक अमाउंट ले सकती है, पेमेंट ले सकती है इन कैश, कि भाई हमारी वजह से आपके आसपास का डेवलपमेंट हो गया है, इसको लेकर। इट इज कॉल्ड स्पेशल असिस्टमेंट। ले सकती है, जरूरी नहीं है कि लेगी। नाउ द लास्ट वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर अगेन, जो ना ही असेट क्रिएट करेगा ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस करेगा। जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर था ना, जस्ट वही लिखकर कट कर देना कि इससे ना ही असेट क्रिएट होगा ना ही उससे लाइबिलिटीज रिड्यूस होंगी। द एक्सपेंडिचर मस्ट नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। पेमेंट ऑफ सैलरीज, अगर सैलरी पे कर रहे हैं तो यानी कि गवर्नमेंट की पॉकेट से सैलरी जा रही है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन उस एक्सपेंडिचर से कोई भी असेट क्रिएट नहीं हो रहा है, ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। वेयरएज अगर हम डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली मेट्रो की बात करें, दिल्ली मेट्रो की डेवलपमेंट की बात करें, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का असेट है। गवर्नमेंट ने अगर पैसा दिया है तो उन्होंने दिल्ली मेट्रो का डेवलपमेंट देखा है, वो उनके लिए असेट है, ठीक है। तो इसके अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए अंदर बेसिकली क्या आएगा? इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, सब्सिडीज और सैलरी गिवन, या डिफेंस के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है, या एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।